Good morning, students. This video is for economics and the chapter is elasticity of demand. Okay. So first of all, what is meaning of elasticity of demand? Elasticity basically means sensitivity. I'll explain this with the help of an example that in a class we come across different kind of students. There are sensitive students. If a sensitive student has not done his or her homework and the teacher is questioning, and a very sensitive child will take you know uh, the teacher, whatever the teacher is saying, kind of snubbing, the teacher is snubbing the child, why have you not done your homework? So a sensitive child, let's say, just imagine tears are rolling down her or his cheeks. She or he is so touchy that you say something and they take it to their heart. Okay. On the other hand, there can be an extreme case of indifferent students. The teacher is scolding, shouting, why you're not doing your homework? Daily your work is incomplete. There's no such students are it doesn't make any difference to such a child. So I hope you're understanding. So a child who's indifferent to what the teacher is saying, we can say he or she is not sensitive at all to what people or the teacher is telling him, that your work is not complete and all that. You're not regular in your work and I'll report to the principal calls, then also doesn't make any difference. So understand this thing, such a person is indifferent, that means not sensitive. On the other hand, you say something to a person and that person is very touchy and emotional and he takes things to his her or her heart. That person is hypersensitive. Now going by this example, I'll tell you here, the the cause is the price. When a small change in the price, let's say the price falls a bit, okay, now what the law of demand says, that when the price will fall, what will happen to the quantity demanded will rise. So understand this thing before going into the definitions and all, that if the price decreases a bit but there's a huge or considerable uh, rise in the quantity demanded, it leads to considerable extension of demand. We say that the demand is sensitive to a small price change, means in such a case demand is elastic. Are you understanding? Because a, a bit of change in price is bringing a considerable or a big change in the demand. In this case, it is the case of elastic demand. Okay. And let's take the case of, this was the case of a sensitive child. Try to correlate sensitive demand. Take another example. There's a product, its price rises too much, but still there is no effect on the demand. Demand has fallen down, but a bit. This would happen in case of products which are basic necessities of life. Are you understanding? For example, आटा ले लो. आटा अगर महंगा हो गया तो आटा महंगा हो गया अगर, तो क्या लोग रोटी खाना बंद कर देंगे? तभी भी खाएंगे. तो आटा महंगा हो गया तो क्या होगा? डिमांड फॉर आटा, wheat flour will not change. तो what do we say in this example? Demand for आटा जो है, whether the price is rising or falling down, अब for that matter आटा अगर सस्ता हो गया, अगर आटा सस्ता हो गया तो क्या मैं, मेरी डाइट है मान लो 4 चपातीज में खाता हूँ, तो क्या मैं 8 चपाती 10 चपाती खाने लग जाऊंगा कि अरे जी आटा सस्ता हो गया? इट्स नॉट लाइक दैट. I hope you're understanding. Whether the price of atta rises or it falls, people will consume the same quantity of atta as they were doing that. तो इस केस में क्या ये दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि इस केस में आटे की डिमांड जो है वो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप प्राइस बढ़ा लो या घटा लो. तो ये उस इसकी डिमांड उस इनडिफरेंट बच्चे की तरह है जिसको टीचर डांट रहा है, होमवर्क नहीं कर रहे तुम, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. एक उदाहरण है. तो प्राइस आप बढ़ाओ घटाओ, डिमांड आटे की जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. लोग उतना ही लेंगे जितना वो ले रहे थे, क्योंकि वो उतनी ही रोटियां खाएंगे जितना उनकी डाइट है. आई होप कुछ सेंस बना इसका. तो हम क्या कहेंगे इस केस में बेटा,
इस केस में कहेंगे कि डिमांड फॉर आटा, यानी कि नेसेसिटी का एग्जांपल देने के, डिमांड फॉर नेसेसिटीज क्या होती है, वो इनइलास्टिक होती है, वो सेंसिटिव नहीं होती टूवर्ड्स अ change in the price. Let's go in detail. So now I'll read the definition. Elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to a change in any of its determinants. Determinants मैंने पढ़ाए थे. These are the factors which affect demand. It can be price of the commodity. It can be price of related commodities, price of substitutes or complementary goods. Okay, or income of the consumer, or other factors. But children, basically in syllabus or in when we study elasticity, we consider only three types of elasticity of demand, and these are price elasticity of demand, means how sensitive demand is when the cause is the कारण जो है price का change है, ठीक है, when the cause is a change in the price, how the demand is responding, this is price elasticity of demand. Then second one is income elasticity of demand. Income elasticity of demand में हम देखते हैं कि कंज्यूमर की कमाई यानी कि इनकम अगर बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इनकम कम होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या असर पड़ रहा है, इट्स लाइक दैट. ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is basically where we study the effect on demand caused by change in the price of related good. That related good could be substitute, that related good could be a complementary good. So let's proceed with price elasticity of demand right now. So here's your price elasticity of demand. Basically, it is the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity in response to a change in its price. अर्थात इसका क्या मतलब है कि क्वांटिटी डिमांडेड किसी प्रोडक्ट की किस प्रकार से चेंज हो रही है, कैसे उसमें परिवर्तन आ रहा है, कारण क्या है उसका, कि जब प्रोडक्ट का जो है प्राइस में परिवर्तन आ रहा है. अ चेंज इन द प्राइस, हाउ अ चेंज इन द प्राइस इज affecting, causing a change in the quantity demanded. This is called price elasticity of demand. It's denoted by, as you can see, I'll point out with where I'm reading on the screen with red ink, red pen, EP, pay attention, E स्मॉल पी उसके थोड़ा नीचे लिखना है. इसका ये क्या दर्शा रहा है, दिस इज ईपी डिनोट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बेटा इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ऊपर आप लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब क्या डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये है 5 प्रकार की. डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर ऑफ 4 can be classified into 5 categories. First one is perfectly inelastic demand. Second is perfectly elastic demand. Third is unitary elastic demand, and then fourth is elastic demand, and the fifth is inelastic demand. Let's proceed one by one. Perfectly inelastic demand. बेटा इसमें EP जो है वो 0 है, price elasticity of demand 0 है. When the quantity demanded of a commodity does not respond to a change in its price, then the elasticity of demand is 0. आप प्राइस बढ़ा लो, आप प्राइस घटा लो, जितना कंज्यूमर्स खरीद रहे थे जिस मात्रा में वो वही खरीद रहे हैं. अभी मैंने आटे का एग्जांपल दिया था, नमक का एग्जांपल ले लो, ठीक है, नमक सस्ता हो गया तो मैं सब्जी में घर पे वाइफ को ही बोलूंगा कि ज्यादा, हाँ भाई नमक सस्ता हो गया अब तो 2 चम्मच डाल दो दाल में. इट्स नॉट लाइक दैट. या चीनी सस्ती हो गई तो मैं, मान लो मैं चीनी पीता ही नहीं हूँ, चीनी सस्ती है तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई चीनी शुरू कर दो, और सस्ती होगी तो 2 चम्मच डाल दो. इट्स नॉट लाइक दैट. तो पे अटेंशन. अब यहाँ देखिए, price is on the y axis, quantity is on the x axis. This is the original price P at OP price. This is the origin OP price. How much is the quantity demanded? OQ. ठीक है. अब देखो अपवर्ड पॉइंटिंग एरो क्या दर्शा रहा है कि प्राइस इज राइजिंग टू P1. अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फर्क नहीं पड़ा. पीपल आर डिमांडिंग OQ ओनली. अगर प्राइस कम कर दो, P2 पे कर दो, देखो P1 बढ़ाया तो क्वांटिटी डिमांडेड वही है OQ. आप प्राइस कम कर दो, डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो दिखा रहा है वो P2 कर दो, तभी भी कंज्यूमर वही खरीद रहे हैं OQ. तो दिस इज अ केस जहां पे डिमांड पर
कोई असर नहीं पड़ रहा, चाहे आप प्राइस बढ़ा लो चाहे आप घटा लो, इट्स लाइक दैट। ये जो केस है, आई जस्ट टेल यू ये किस केस में होता है परफेक्टली। एक तो मैं बता ही चुका हूँ परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड किस केस में होता है। एक बुक का एक भी एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, लाइफ सेविंग मेडिसिन में भी होता है। लाइफ सेविंग मेडिसिन है, कोई बीमार है बहुत जरूरी दवाई चाहिए उसके लिए, तो भैया दवाई तो लेनी पड़ेगी, चाहे जितनी महंगी, कहीं से उधार मांगो चाहे जैसे भी करो, तो प्राइस बढ़ जाए घट जाए, दवाई लेनी है तो लेनी है। जस्ट लाइक आटा नमक एंड चीनी, आई एक्सप्लेन टू यू बेसिक नेसेसिटीज। We move to the second example, second category, second type, second degree, that is perfectly elastic demand. अब यहाँ क्या हो रहा है, when consumers are prepared to buy all they can at a particular price but nothing at all at a slightly higher price, ठीक है। अब ये तो बहुत एक्सट्रीमली रेयर केस है, थ्योरी में ही है बेसिकली। तो इसमें ईपी दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो ये जो साइन मैंने बनाया ना, ये है इन्फिनिटी का, हॉरिजॉन्टल एट बना लो एक तरह से, तो ये इन्फिनिटी है। अब इसको समझना बेटा, देखो प्राइस है पी, मैं सर्कल कर रहा हूँ रेड से। व्हेन द प्राइस इज ओपी, people are wanting to purchase any quantity, infinite quantity. Okay, D2 is the demand curve in this case. In the previous case I named it D1, देखो D1 था उसमें ना, now this is D2. Now what's happening is, अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाया, मैं थोड़ा करता लेकिन बच्चों को दिखता नहीं इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर बनाया P1, हल्का सा प्राइस दुकानदार ने बढ़ाया तो व्हाट इज हैपनिंग, कंज्यूमर गायब हो गए, खाली कोई आ ही नहीं रहा, वो भी चकरा गया कि यार ये क्या हुआ, कल तक प्राइस कम था तो एकदम भीड़ पागलों की तरह रश हो रखा था, आज थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया मैंने तो कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पे। तो ऐसा केस हकीकत में नहीं होता। आई होप दिस इज क्लियर। देन वी कम टू यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इस केस में क्या होगा, देखो व्हेन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज इन चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, इस केस में दो इलास्टिक ईपी यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आएगी। सिंपल सा बेसिक बेसिक मैथ्स में चले जाओ आप, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, यहाँ देखो ईपी का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यूनिटरी का मतलब है 1। ये 1 कब आएगा बताओ, जब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी द सेम, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप इट्स क्लियर। परफेक्टली सॉरी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब होगा बेटा, कॉज में पहले लिख रहा हूँ, कारण क्या है, चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस जब बराबर है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी, क्योंकि ईपी जो आएगा 1 आएगा। उदाहरण के तौर पे प्राइस चेंज हुआ 10% से और क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% से चेंज हुई, ऐसे केस में ईपी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 1। इस केस में आप देख सकते हैं ग्राफ, डिमांड जो कर्व मैंने बनाया वो उसको मैं D3 कह रहा हूँ बेटा। ये इस तरह की शेप है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। it approaches towards y-axis and towards x-axis but never touches. Okay, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैथ्स में। नाउ ये अप्रोच करती है y-axis को और x-axis को, बट कभी उनको टच नहीं करती। ये भी बहुत रेयर केसेस होते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी के। अब हम चलते हैं इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली नहीं कह रहा हूँ, इन इलास्टिक डिमांड कह रहा हूँ। तो इसमें क्या है, परसेंटेज इन चेंज इन प्राइस इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस आपने काफी चेंज किया, प्राइस आपने काफी कम किया, आप सोच रहे थे डिमांड बहुत बढ़ेगी लेकिन डिमांड उतनी नहीं बढ़ी। ये देखो ऐसे में क्या होता है, डिमांड का ईपी जो होगा इस केस में 1 से कम होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में विल बी लेसर देन 1। यहाँ देखिए डिमांड कर्व को देखो, D4 लिखा है मैंने, इसको D4 नाम रखा है मैंने इसका। ये स्टीप होगा, इलास्टिक डिमांड कर्व जो होगा वो स्टीप होगा, जब आप स्टीप बनाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। अब आप देखो पी ओरिजिनल प्राइस है ओपी, और ये गिरा कितना, इट डिक्रीज टू OP1, बट इट इज कॉजिंग एट OP, हाउ मच वाज द क्वांटिटी डिमांडेड, OQ, एंड व्हेन द प्राइस फेल डाउन टू OP1 द क्वांटिटी डिमांडेड इज राइजिंग टू Q1। तो आप देखो P से P1 ज्यादा है, Q टू Q1 डिस्टेंस कम है। ये क्या दर्शा रहा है कि प्राइस में ज्यादा बदलाव आया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ही मामूली फर्क पड़ा। आई थिंक वीडियो अब नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इलास्टिक डिमांड।
Okay, I'll be posting next week.